ओके, एक जो डिफरेंशियल ग्रिप ब्रेक दिया हुआ है इसका, इस पे आज न्यूमेरिकल देखेंगे, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन द डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। ओके, दिस फोर्स अप्लाई एट सी पॉइंट पे कोई फोर्स अप्लाई किया गया है, बी, ओके, एंड ओ एंड ए, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशियल भी गया है, यहाँ पे फोर्स पी अप्लाई किया गया है, इसका मैग्नीट्यूड तो यू हैव टू कैलकुलेट अप्लाइड फोर्स पी। तो पी को मैग्नीट्यूड निकालना है कि ये इसका कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि एक चीज को ब्रेक लगा सके। तो ये में एक्चुअली ड्राम है, ओके, दिस कॉल द ड्राम, और ये जो है ये मेरा रोप है, ओके, ये जो मेरा रोप है, दिस इज रॉप पार्ट, यहाँ से शुरू किया गया, यहाँ पे गोल से होते हुए पूरा इसके पार्ट को, तो टोटल जो रैप एंगल है, तो यहाँ से जब यहाँ तक, उसके बाद ये रोप यहाँ से एग्जिट हो गया, अलग हो गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल रोप इस ड्राम के टच में है, कांटेक्ट में है, वो एंगल है 225। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 225 डिग्रीज, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रैप, ओके। T1 is the tension and T2 is the select tension. The T1 is tight tensions and T2 is the select tension, which can depend on the rotations of the drums. Okay, so rotation of the drum. If your drum is rotating in the anti-clockwise direction, yeah, clockwise direction, the tensions T1 and T2 may be changes. If this according to this diagrams, if the rotations of the drum, this is our clockwise directions. Okay, to clockwise direction. So due to this direction, the T1 become very, very tight because the opposite to the direction of the drum, but T2 is slack due to the support of the rotations of the drum to the tension in the string. So ये rope है, okay, the T2 is a slack. So we know that the basic equation of the ratio of the tight to slack tension is equal to E to the power mu in theta, where mu is the coefficient of the friction, because the friction is a more factor to the brake. If the friction is very, very minimum, so the braking system, braking torque is will be minimum, so it's very tough to the brake on the drum. Okay, the friction factor is very more important. So let mu is the coefficient of friction, the coefficient of friction is given 0.0, but this question I have taken from that, from Ratan. Okay, so have data is not mentioned in the questions, only figure I have a test here. The mu is equal to 0.3 coefficient of friction and theta is equal to 225. Okay,
So 2 to 5 is theta. You just change, you can change into radian. Okay. So this is force applied. A total lever length up to this point O, this is called the pivot, a fulcrum point. O is a fulcrum point. Remember, O is a fulcrum point. Fulcrum point about which the system is rotating. Okay, so this is a fulcrum point. The total moment about this point is zero. Total moment about this point should be zero. Okay, so the P is exerted at the end of the C, and the moment about this, total moment about A, about this point, and total amount moment by T1 about this point should be zero. Summation of the total moment about this fulcrum point is zero. It is the role of the Variance theorems of the moment. Second, the sum dimension is mentioned, the 500 mm total length of the lever up to this fulcrum point, and from B to 0 means fulcrum point, from this B to up to O is another distance between the B to O is equal to 40 mm. So I have mentioned here, I'm writing here. Okay, so everything I'm writing here. Okay, so from C to O, the lever length is 500 mm, and from B to A to B to O is equal to 40 mm. All the dimension in mm. Remember, all the dimensions in mm. And finally, A to O. A to O is equal to 150 mm. The moment is the force and the perpendicular distance. Okay, the perpendicular distance. Okay, not the any angle. The perpendicular distance, the angle should be 90 degrees. The T1 and the T2. So first, using this equation T1, and now mention T1 and T2, how I can find the T1 and T2. So theta is equal to 2 to 5 degrees. So we know that 1 degree equal to 5 by 180 radians. Okay, so 1 degree equal to 5 by 180 radians. So just convert into the degree into radians. Okay, don't put direct degree in this equation. Otherwise, the answer will be wrong. So 2255, just putting the 1 degree equal to this value. So 225 degree equal to 5 by 180 into 225 degree. So solving this equation, I will get 3.92 radians. Okay, just to solve it. Then T1 by the using equation 1, T1 by T1 by T2 equal to this, and the value of the friction coefficient 0.3, okay, 0.3 and 3.92. Just calculate it. I will get the answer 3.22. 3.22. So T1 by T2 is given after the solving this equation. The T1, because T1 the tight tension is times of 3.22 times of the select tension. So T1 is the tight tension in the rope, and T2 is the select tension in rope. It depends on the rotations of the drum. Remember, depends on the rotation of the drum. T1 is always greater than T2. So here T1 is always greater than T2, the 3.22 times of the select side tension. So it is another question 2, assume the question number 2. $300. The radius of this drum is given that R equal to 175 mm. Okay. जो डाटा नहीं मिलेगा वहां पे डाटा मेंशन कर देंगे, नो प्रॉब्लम.
And total torque is given by 350 Newton meter. So this value is given. Radius of the drum is 175 mm and torque 350 Newton meter. ये दो डाटा दिया हुआ हो. So now torque equal to T1 minus T2 equal to radius 350 Newton meter. R is given to in mm. So just convert into the mm. So T1 minus T2 into 175 equal to 350 into 1000. Because this is given the Newton meter, I convert into the Newton mm. So I have just multiplied with the 1000. Okay. So here T1 and T2 equal to answer हो जाएगा 350 into 1000 divided by 175. Therefore 2000 Newton mm. ये हो गया difference between equation number 3rd. So this equation and this equation, using this equation, equation number 2 and equation number 3, then simple simplifications of the equation 2 and 3rd, I will get the value of T1 and T2 because the tight center and the select. Just put the value 3.22 T2 and T2 equal to 2000. So 2.22 T2 equal to 2000. So just solving this 2000 divided by 2. This is answer 10 newtons and T1 will be T1 by 2907 Newton. Okay, so this is our values after solving. Okay. इसको कॉपी करते हैं अगेन. अब टेकिंग मोमेंट, हम इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं. वी टेक द मोमेंट about this fulcrum. So there are 3 forces acting in the system. First, the applied force P. Second, the due to T1, and third one is the T2. There are 3 moments exerted on that fulcrum. The total taking the moment about this fulcrum. So what's the meaning of total fulcrum? So P into this P into L, 500. So this is a downward direction, so it is anti-clockwise directions about this fulcrum. Second one is T1. If this direction, we take this direction, take the both same direction. इसके about क्या हो जाएगा? This is also anti-clockwise. So sorry, in anti-clockwise direction. This is clockwise, this is anti-clockwise direction about this T2, about this one. So
T2 into 40, and then this one is acting this point about the clockwise. So positive T1, T2, sorry यहाँ पे T1 and T2 into 150 equal to 0. The total moment about this fulcrum point is 0. Okay. Then solving this equations, we will get answer value 66 newtons approx. This is very simple to calculate the braking force. This is the braking force exerted on that drum. अब आते हैं लास्ट टॉपिक आज का, द इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक। तो ये हमारा एक इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक है। इसका तुमको गाड़ी वाड़ी में दिखाई देता होगा, अगर कभी गाड़ी खोलोगे ब्रेक ब्रेक सिस्टम का, तो ये जो पिक्चर है सेम इसका ये पिक्चर दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर हो गया, ओके, जिसको हाइड्रोलिक व्हील, जिसमें तेल या ऑयल भरा रहता है। देखो अब ये हमारा ड्राम हो गया, ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड ड्राम, ओके है। और उसके बाद ये जो ड्राम है इसके साथ ये जो देखोगे पार्ट, ये तुमको ब्रेक लाइनिंग बोलते हैं, इसको ब्रेक लाइनिंग बोलते हैं। ब्रेक जहाँ पे फ्रिक्शन पैदा करता है, तो ब्रेक लाइनिंग मतलब विच हैज अ मोर कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, ओके, दिस पार्ट हो गया। उसके बाद तुमको ये जो पार्ट है, ओके, ये तुमको एडजस्टिंग कैम बोलते हैं हम लोग, है। इसके साथ देखो एक स्प्रिंग जुटा हुआ होगा, यहाँ पे स्प्रिंग, ये स्प्रिंग होता है फॉर रिटर्निंग स्प्रिंग, कि जब ये चीज एक्सपेंड होता है तो फिर वो स्प्रिंग के अनुसार स्प्रिंग में जो एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी रिलीज करके फिर वो अपनी पोजीशन को रिगेन करता है। तो इस तरह का दो ठो पार्ट रहता है। तो काम कैसे करता है जब उसको देख लेते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं, चाहे हम लोग मैनुअली ब्रेक लगाएं या हाथ से लगाएं, चाहे पैर से लगाएं ब्रेक, तो ये जो मेरा सिलेंडर होता है, इसमें देखो इस तरह का वायर गया हुआ है। तो ये अबाउट पिन, इसको जो एंकर पिन बोलते हैं, इस पिन के अबाउट ये पार्ट घूमता है। तो यहाँ पे फोर्स लगता है F, यहाँ फोर्स लगता है F, यहाँ फोर्स लगता है F1, यहाँ पे फोर्स लगा F2, ओके, ये फोर्स इधर लगा। जब ये फोर्स इधर लगेगा तो क्या होगा, ये पार्ट जो है, ये चीज फ्रिक्शन लाइनिंग इस ड्राम के साथ टच करेगा। तो ड्यू टू मोर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन दिस ब्रेक लाइनिंग और ये ड्राम के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये भी लगेगा और प्लस यहाँ पे भी लगेगा, and therefore they are breaking torque. Okay, so due to this high breaking torque, the drum will stop, yeah, retard the system. और जब हम ब्रेक रिलीज करते हैं तो ये जैसे ब्रेक को छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग जो एनर्जी स्टोर करता है, तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इक्वल टू 1/2 kx²। k is the spring constant and x is the displacement, okay। तो ये इतना एनर्जी स्टोर करता है, फिर यही एनर्जी वापस आता है। अब फोर्स लगता है, फोर्स इक्वल टू -kx, क्लास 11 फिजिक्स। तो क्लास 11 में इसको पढ़े होगे तुम लोग फिजिक्स में, या सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 फिजिक्स क्लास में इसको देखोगे कि स्प्रिंग में कितना कौन कौन सा फोर्स लगता है। तो सेम यहाँ पे होता है, ये मास्टर सिलेंडर, ये हमारा फोर्स लगाता है F1। तो नाउ व्हाट हैपेंड, तो अब देखो यहाँ पे ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, अगर मान लो रोटेशन इसका इस दिशा में है, तो फ्रिक्शन द ड्राम के ऊपर फोर्स लगेगा मेरा ये पार्ट, दिस कॉल्ड द फ्रिक्शन, ठीक है। जब ये गोल घूम के इधर से आएगा तो इसके जरिए से लगेगा इधर फ्रिक्शन, तो दो फ्रिक्शन लगेगा, ओके। और यहाँ पे लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, तो एन मतलब हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स और ये फोर्स हो गया। तो ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके अबाउट हम मोमेंट लेंगे। तो हाउ मच द मोमेंट will act about this ankle pin, okay।
तो इसके लिए हम दूसरा तस्वीर को यहाँ पे कॉपी करेंगे, जो जिस तुम किताब से पढ़ते होगे उस किताब में इस तरह का तस्वीर सामने आएगा। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट let r be the radius of the ram, means from this point to this point is equal to r. F1 and F2 be the hydraulic brake, in hydraulic force. ओके, मीन्स ये जो ड्राम है ये इधर फोर्स लगाएगा F1, F2 लगा दो यहाँ पे F1, एंड F1 and F2 be the friction force, लेकिन both are the same, क्योंकि रोटेशन सेम है, लाइनिंग भी एक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी सेम है, तो मेरा सेम हो जाएगा। तो F1 will be mu into n and similar to same value mu into n. So mu is equal to coefficient of friction. Okay. Some geometry will take. So total this is our from this point to this angle P is equal to assume length. Okay. The total moment, taking moment about O2. This is the O2. कौन सा मोमेंट लगेगा जरा उसको देखेंगे हम लोग। तो F ये फोर्स है एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस पॉइंट हो जाएगा मेरा F2 into L, पहला मोमेंट लग गया। तो दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको लिख दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकेंड, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स के चलते मोमेंट कितना लगेगा। अब देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा n, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दिस। ओके, तो मोमेंट इसके अबाउट लेना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज दिस, ओके, दिस इज थीटा, ओके, दिस इज थीटा, इसको मान लेते हैं फॉर ए, ओके ए, और ये होगी H2 पॉइंट। तो जो मेरा नॉर्मल फोर्स लगेगा, मेरा नॉर्मल फोर्स n इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AO2, तो दूसरा लगेगा मेरा फोर्स n इंटू AO2। AO2 मतलब डिस्टेंस है, A से लेके O2 का डिस्टेंस हो गया, जो कि तुमको लगेगा अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थर्ड नंबर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। ओके, तो F इंटू इसको मान लेते हैं हम लोग है B, तो O2B मतलब ये यहाँ से, सॉरी यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे H2 ही मान लेते हैं। इज H2, तो सेकेंड फ्रिक्शन फोर्स इनटू SO2, so this is anti-clockwise direction. Now what is the AO2? So from this using that trigonometric condition and geometric interpretation, so from this angle theta, using sine theta equal to this is a perpendicular distance, look that this is O, so OA by
and this is O and O2. O and O2. And O and O2 equal to nothing but the radius R. So therefore, sine theta equal to AO equal to, so OA equal to R sin theta. ओके, देन फाइनली अगर हम देखेंगे कि AO2 कितना होगा मेरा, सॉरी यहाँ पे AO2 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लेना था हमको। तो दिस इज आवर O2 A2 हो गया, दिस वैल्यू, ये मैं वैल्यू निकल गया। देन SO2 कितना निकलेगा मेरा, ये निकलेगा फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो फ्रॉम टोटल R में से इतना माइनस हो जाएगा। ओके, वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो SO2 इक्वल टू R माइनस R sin theta. So this is clockwise. This is a clockwise. Clockwise, both others should be added, and one is a negative because it is anti-clockwise direction. Just put F2 into L clockwise, again clockwise, and R sin theta equal to friction force R minus R sin theta. And friction force F into L n sin theta and mu n R1 minus sin theta. So F2 means how much forces? So F2 equal to mu n R1 minus sin theta minus n R sin theta. ये इक्वेशन हो गया F2 के लिए। तो ये फोर्स मेरा लगेगा इस केस में। फाइनली एक डिस्कस करेंगे सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टीज। When the friction force is, जब फ्रिक्शन फोर्स मतलब जब हम फ्रिक्शन लगाते हैं, क्योंकि असल तो मेन फैक्टर फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन फोर्स मेरा कम या ज्यादा हो जाएगा तो ब्रेक भी उसी अकॉर्डिंग टर्म लगेगा, क्योंकि किसी भी फ्रिक्शन फोर्स में हमारे पास दो चीज होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, एक, क्योंकि इस केस में एक तो लगता है फ्रिक्शन टॉर्क लगा, प्लस एक लगा जो मेरा मास्टर जो साइकिल है उस पे लगा, तो वो सकते हैं तो नॉर्मल लगा, नॉर्मल टॉर्क लगा। तो ये सब का सब हमारे फ्रिक्शन के ही रिलेशन में आ रहा है, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये सब भी बहुत मेरा बहुत ज्यादा होगा। अगर फ्रिक्शन मेरा एक इतना लिमिट में हो जाए ताकि वो ब्रेक अपने आप ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब मुझे बाहर एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत पड़ेगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत पड़ेगा तो उस एक्सटर्नल फोर्स के साथ भी फ्रिक्शन पैदा होता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाए कि हमें कि एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब बहुत मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स देंगे तो हमारा वो ब्रेक लग जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स खुद सेल्फ, मतलब कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज द सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक, इज कॉल्ड द सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टीज। तो ब्रेक अगर मतलब कि फ्रिक्शन इतना एनफ हो जाए कि वो ब्रेक खुद लगा दे तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग है सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टीज, हम लोग इसको कहते हैं। ओके,
CLUTH, क्लच। अब क्लच एंड ब्रेक में डिफरेंस क्या है? क्लच का मतलब, क्योंकि हम अगला टॉपिक क्लच में जाएंगे, क्लच से पहले डायनामोमीटर पढ़ाएंगे हम। तो क्लच का मतलब होता है ज्वाइनिंग टू रोटेटिंग मेंबर। तो दो रोटेटिंग मेंबर को बढ़ाते हैं। और ब्रेक में क्या है कि दो रोटेटिंग एलिमेंट का यूज करके हम स्टॉप करते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे मेरा स्टॉप करने में यूज होता है, बल्कि क्लच का यूज हम लोग दो असेंबल करने में यूज करते हैं। मतलब कि एक क्लच का इस्तेमाल हम लोग जो बाइक में यूज करते हैं, तो जो मेन इंजन का शाफ्ट होता है, इंजन का जो शाफ्ट होता है उसको रोटेटिंग शाफ्ट या कह सकते हो व्हील शाफ्ट में हम लोग जोड़ते हैं। तो क्लच में हम लोग ज्वाइनिंग या असेंबल करने का यूज करके हम लोग स्पीड को, पावर को ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो ये हमारा असेंबल पार्ट होता है, बल्कि यहाँ पे हम लोग दो रोटेटिंग पार्ट को हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं। तो एक रोटेटिंग एलिमेंट को रोकने की जरूरत करता है, जबकि यहाँ पे एक रोटेटिंग एलिमेंट को दूसरे से हम रोटेटिंग एलिमेंट को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे रोटेशन को ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंजन शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट में हम भेजते हैं। तो यहाँ पे असेंबल और डिसअसेंबल करते हैं हम लोग। This meeting is being recorded.